اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سٹولوجی۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اسٹوڈنٹ گاؤن سلائی اور کٹائی سکھائیں گے۔ تو سب سے پہلے یہاں بلیک کپڑے میں جس طرح آپ کو پتا ہے کالج گوئنگ گرلس، اسکول گوئنگ اور یونیورسٹی گوئنگ گرلس تمام گاؤنس پہننا پسند کرتی ہیں، خاص طور پہ پنجاب میں۔ تو اس کے لیے آج ہم یہ گاؤن تیار کریں گے جس کا ناپ درج ذیل ہے۔ تو چلیں ہم اس کی سب سے پہلے کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ دو اس طرح سے 53 انچ لمبائی کے ہم نے پلو لے لیے ہیں۔ ان کو صحیح طرح سے آپ نے بچھا لینا ہے، کناری آپ کی طرف ہو، کچھ اس طرح سے اچھے سے ایک دوسرے کے اوپر اس کو سیٹ کر لیں۔ دونوں پلوؤں کو سیٹ کرنے کے بعد تیرے کا نشان لگائیں گے۔ چونکہ یہ اسکول گوئنگ کالج گوئنگ بچی کا ہے تو اس کا تیرا میں لے رہی ہوں 16.5 انچ۔ اور اب اس کی چیسٹ کا نشان لگا لیتے ہیں جو کہ 22 انچ یا 21 انچ ہے۔ یہاں پہ بازو 10 انچ کرنے ہیں ہم نے، اور اس کے بعد لگا لیتے ہیں جی فٹنگ کا نشان۔ فٹنگ 19 سے 20 انچ رکھیں گے اور اس کے بعد ان سے بھی 2 انچ بڑھا کے ہم کٹائی کر دیں گے۔ تو بازو میں چونکہ گولائی بھی آنی ہے اس لیے تھوڑا سا اوپر میں نشان لگا رہی ہوں اس کو۔ تو اب اس طرح سے آپ نے چیسٹ کے نشان سے فٹنگ تک اور نیچے سے یوں ٹیڑھا کر کے ایک نشان لگا لینا ہے اس کے فلیئر کا۔ تو یہ پچھلے پلے کی ہم ایک جیسی کٹائی کر لیں گے، اوپر سے 16.5 رکھ کے تو یہاں سے ترچھی کٹنگ کریں گے۔ تو یہ سارے نشان میں جتنے بھی لگائے ہیں ان کو ملا کے پوری لائن بنا لوں گی اس طرح سے۔ تو چلیں ناظرین اس کے اوپر کٹائی کر لیتے ہیں، تھوڑا سا بڑھا کے سلائی کے جتنا بڑھا کے آپ کٹائی کر سکتے ہیں۔ اوپر سے میں نے جیسے 2 انچ تک بڑھایا ہے کیونکہ یہاں سے اگر ہمیں کھلا بھی کرنا پڑے تو ہم کھلا کر سکتے ہیں، اور یہ ہم نے لگا دیا ہے چیسٹ کا نشان۔ اب اگلے پلو کے لیے تھوڑی سی گہری کٹائی کریں گے، میں 1.5 انچ تک گہری اس کی کٹائی کروں گی کیونکہ پہلے ہم نے جو کٹائی کی ہے وہ پچھلے پلو کے حساب سے کی ہے، اکٹھی کر لی تھی۔ اب اگلا پلو اٹھائیں گے، اس کے دونوں یعنی اس کو ڈبل کیا ہوا ہے نا تو اس کے 2 پارٹس ہم اٹھائیں گے اور ان کی تھوڑی سی گہری کٹائی کر دیں گے۔ تو یہ ہمارا رہا اگلا پلو۔ ناظرین یہ بند گاؤن نہیں ہے، اس کا ہم نے پٹی والا گاؤن بنانا ہے، اوپن ہے۔ نیچے سے بھی تھوڑی سی گولائی میں کٹائی کر دیں گے تاکہ پاؤں کی طرف سائیڈوں سے یہ پاؤں کے نیچے نہ آئے، کیونکہ یہ فلیئر والا ہوتا ہے تو فلیئر میں سائیڈ سے تھوڑی سی گولائی میں کٹائی کر دیا کریں۔ اب یہاں سے میں یہ نشان 3.25 لے رہی ہوں کیونکہ 1 انچ کی ہماری پٹی بھی لگ جانی ہے، آدھا انچ مارجن میں بھی آ جانا ہے سلائی میں بھی۔ تو اس کو میں نے 6 انچ تک ڈیپ کیا، بچی کا گاؤن ہے تو 6 انچ تک ڈیپ گلا لینا ہے۔ اگر آپ نے بڑا لینا ہے تو آپ 7.5 تک بھی ڈیپ کر سکتی ہیں اور چوڑائی میں 3.5 یا 4 انچ رکھ سکتی ہیں۔ تو یہ میں نے لی چوڑی 3 انچ اور لمبائی میں نے اس کی ڈیپ گلا 6 انچ تک لیا۔ اب اس پہ نشان لگا کے ہم اس کو اس طرح سے کٹنگ ہے، تھوڑا سا کرو دے کے آپ نے کٹنگ کرنی ہے، نیچے سے بھی چونچ نہ بننے پائے بلکہ اس کو بھی تھوڑا سا گلائی دے دینی ہے۔ اگلے پلو فرنٹ پلو ہم نے اوپن رکھنے ہیں، یہاں پہ اوور لیپ پٹی لگ جائے گی تو اس کو ہم نے درمیان سے کاٹ لیا ہے۔ یہ کچھ اس طرح سے آمنے سامنے آ جائیں گے، جو اگلا پلہ اس کے اوپر پٹی لگے گی تو پٹی کے لیے میں نے اس طرح سے یہ ایک کپڑا لیا ہے لمبا اور ان کو 3 حصوں کو جوڑ کے میں نے یہ پٹی بنا لی ہے۔ یہ تقریباً 3.5 انچ چوڑی ہے اور اس کے اوپر 1 انچ چوڑی چیپی کی پٹی ہم لگائیں گے۔
तो ये रहे हमारे बाजू जो कि 10 इंच चौड़े हैं और लंबाई इसकी 21 इंच तैयार रखनी है, तो मैंने ये 22.5 लिए हैं, कटिंग कर लिए हैं। चलें जी, पट्टी को हम प्रेस लगा लेते हैं। सबसे पहले जहाँ पे जोड़ हैं, जोड़ों को अच्छी तरह से खोल के प्रेस लगा लेते हैं, ताकि जहाँ पे जोड़ है वहाँ मोटा मोटा सा ना हो जाए। ये इस तरह से आपने जब भी पट्टी पे कोई चेपी लगानी हो तो पहले इसकी सिलाइयों को खोल के इस्त्री करने, पट्टी को अच्छे से इस्त्री करने के बाद उसके ऊपर ये चेपी अटैच कर देंगे। चेपी को मैंने 1 इंच चौड़ा लिया है, आपको ज्यादा चौड़ी पसंद हो तो आप उस हिसाब से भी रख सकते हैं। पट्टी को इस तरह से कपड़े के ऊपर अटैच करना है कि मोड़ने के लिए थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के उसके नीचे आपने अटैच कर देना है। नाज़रीन, जब भी आपने पानी लगाना हो तो पानी कभी भी चेपी के ऊपर ना लगाया करें, बल्कि कपड़े वाली साइड पे लगा के उसके बाद प्रेस लगाएं। अब जितना ये मार्जिन हमने छोड़ा था उसको ऊपर इस तरह मोड़ देना है, पट्टी बना लेनी है, फिर दोबारा उसको मोड़ना है और बिल्कुल एक पट्टी की शक्ल दे लेनी है। यहाँ तक इस्त्री करने के बाद बाकी जितना मार्जिन था कपड़े का उसको पट्टी के ऊपर मोड़ देना है। बाद में इसको हम नीचे की तरफ कर लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से हमारी एक फुल पट्टी तैयार हो चुकी है लगाने के लिए। सारे फ्रंट में ये लग जाएगी। अब आपने इसका हाफ निकालना है ताकि ये बिल्कुल पीछे वाले गले से हाफ से स्टार्ट हो और एक जैसी आए। तो ये पिछले गले का आपने निशान लगा लेना है, जो कि मैंने आपके सामने 3.25 इंच रखा था। 3.25 इंच पे मैंने इस तरह निशान लगा लिया है। तो अब पट्टी को गले के रूप, जिस तरह से आपने गला बनाना है इस तरह आप मोड़ेंगे और इसके ऊपर भी एक प्रेस लगा देंगे। तो बिल्कुल इस तरह से ये पिछला गला जो है इसको पीछे की तरफ मोड़ के इन पट्टियों को आपने थोड़ा सा गोलाई देके प्रेस करना है, क्योंकि जो चेपी मैंने लगाई थी वो आड़े रुख की। जब भी आपने इस तरह का ओवरलैप गला बनाना हो तो आपने चेपी आड़े रुख लेनी है। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा इसको गोलाई देते हुए इस्त्री कर लिया था, तो इस तरह से ये शेप बन गई है। तो चले हम इसको गाउन के ऊपर अटैच करते हैं। सबसे पहले गाउन के कंधे अटैच करेंगे। नाज़रीन, पिछले गले पे आपने निशान लाजमी लगा लेना है, क्योंकि पट्टी में आपने पिछला गला 3.25 रखा था, तो यहाँ भी 3.25 पे निशान लगाने के बाद कंधे जोड़ें। कंधे जोड़ने के बाद पिछले पल्लू की थोड़ी सी डीप कटाई करेंगे, ज्यादा डीप नहीं करनी है आपने। ये तकरीबन आधा इंच आपने यहाँ से पीछे से कटिंग कर देनी है। इस तरह से पट्टी जो है वो आपके गले के ऊपर ज्यादा नहीं चढ़ेगी और बल भी नहीं आएगा, वैसे बल आ जाता है। तो दरमियान में एक निशान लगा लें। यहाँ से हमने अपनी ओवरलैप पट्टी लगाना स्टार्ट करनी है, जो कि नीचे तक पूरे ओपन में लगेगी। तो पट्टी का भी हमने हाफ किया हुआ है। इस हाफ को कट के ऊपर रखते हुए हम पट्टी लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने गाउन को सीधा कर लेना है, पट्टी को भी सीधा पकड़ लेना है। यहाँ से मैं चाक के साथ भी मार्कअप कर लेती हूँ, क्योंकि कट जो है वो तो मार्जिन के अंदर चले जाना है। तो यहाँ से हम इसको लगाएंगे। तो इसके लिए लगाने के लिए कितना मार्जिन अंदर लेना है वो हम पहले निशान लगा लेते हैं, ताकि कम या ज्यादा मार्जिन अंदर ना जाए, बल्कि एक जैसा मार्जिन उठाते हुए, मार्जिन पट्टी के अंदर लेते हुए हम पूरी पट्टी को ऊपर अप्लाई कर सकें। तो जनाब, इस तरह से हमने दरमियान से इसको स्टार्ट कर लेना है। यहाँ से आप सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे। सिर्फ उतना ही मार्जिन आपने अंदर इसके दबाव देना है जितना कि आपने निशान लगा रखा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपने कपड़े को ज्यादा खींचना नहीं है, ना पट्टी को ज्यादा खींचना है, ना कपड़े को, बल्कि हल्के हाथ से इसको लेते हुए तो आपने सिलाई कर देना है। तो अगर आपने कोई चिट वगैरह अटैच करनी है तो वो कर दें, क्योंकि हमारा ये ब्रांड है ताज डॉट पीके, तो वो मैंने चिट अटैच कर दी है। दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से पट्टी बना ली है। तो ये रही हमारी
पट्टियों की फाइनल लुक। ये पट्टियों के ऊपर हम बटन लगा देंगे, टिच बटन लगा देंगे बाजार से। तो ये देखिए कितना नाइस फैंसी पट्टी तैयार हुई है और बिल्कुल एक जैसी है, कहीं से ना उठती है, ना कपड़ा उठता है, ना कहीं बल पड़ रहा है। तो चलें इसकी बाकी सिलाई भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब रह गई इसकी साइडों की सिलाई और बाजू की सिलाई। तो सबसे पहले हम बाजू बना लेते हैं। बाजू इसके हमने लास्टक वाले बनाने हैं, लास्टक का फिसका बनाएंगे। तो उसके लिए तकरीबन पौने इंच का नेफा बना लेंगे छोटा सा, फिर इसमें लास्टक डाल के सिलाई लगा देंगे। तो दोनों बाजुओं को इस तरह से मैंने सिलाई कर दिया है। अभी आपने नरम सी लास्टक लेनी है जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा हो, सख्त ना हो। तो उसको नेफे के अंदर इस तरह डालना है और उसके बाद इसके सिलाई लगा देंगे। जितना हमने खुला रखना है बाजू उतना रख के। नाज़रीन, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो ये हमारा बाजू इस तरह से तैयार हो चुका है। तो चलें इसको कंधों के साथ अटैच करते हैं। सबसे पहले आपने दरमियान का निशान लगा लेना है, कंधे का भी और बाजू का पहले ही लगा हुआ है। तो चलें इसको माप के देख लेते हैं कि क्या ये कंधा और बाजू बराबर आ रहे हैं। जी बिल्कुल एक जैसा माप आया है। तो यहाँ से आपने गले से इस तरह हाथ डालना है, सिलाई को सिलाई के साथ पकड़ना है, इधर से बाजू की सिलाई को पकड़ना है, दोनों सिलाई को एक दूसरे के ऊपर रख के और इनके दबाव जो हैं वो आपने एक साइड को ये वाला कर देना और पिछला दबाव पीछे की तरफ कर देना है। इसके ऊपर आपने सिलाई लगा देनी शुरू कर देनी है। गोल बाजू लगेगा ये। तो दोनों बाजू लगाने के बाद अब बारी आती है इसके नीचे वाले हिस्से को फोल्ड करके इस तरह से इतने दबाव के साथ हम सिलाई लगा देंगे। ये इसके घेर वाला हिस्सा है। तो ये भी हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। चलें आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। बहुत ही प्यारा, बहुत ही नीट हमारा गाउन तैयार हुआ है। नाजरीन, आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये गाउन कैसा लगा है और आप कब अपने बच्चियों के लिए ये गाउन बनाना चाहेंगी। अब तक आपने हमारे साथ रही हैं, आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।